Hello friends, welcome to our YouTube channel Current Classes. I hope you like the previous lesson, class 6. This is our free batch for LSE and ADO. This is Lotto batch. Okay, so today we are going to solve puzzle. We are going to solve a maze question. Okay, so let's start today's class. Question number 1. Okay. Question number 1 क्या है? देखिए N से D तक जाना है. Bilingual, we will keep the class bilingual, English and Hindi. Okay, bilingual class रहेगा, हिंदी and English दोनों रहेगा. Okay, D से N तक जाना है. We have to move from D to N. So D to I to M. No. Yes, we can D to I to N. So one is true. A to M. A to D, D to M. Yes, it's true. So both. Let's solve this quickly and just move to the puzzles. जल्दी से सॉल्व करना है और पजल की तरफ चलते हैं. W से Y तक जाना है. W से X तक जाए. देखो यहाँ से इन दोनों में कनेक्टिंग लूडो को कौन सा है. W से हम U की तरफ नहीं मूव कर सकते हैं क्योंकि दिस इज द क्लोज गेट है, मूव नहीं कर सकते हैं. हौसला बैच देख लेना अगर नहीं जानते हो. ठीक है, W से X तक जाते हैं, X से P तक जाते हैं और P से हम V तक नहीं जा सकते, क्लोज गेट है तो ये हमारा गलत. V से W तक जाना है, हर जगह इक्वल टू साइन रहना चाहिए, यहीं पे इक्वल टू साइन नहीं है तो ये हमारा गलत. ओके, C से Y तक जाना है, C से Y तक जाना है. देखो C से हम लोग आराम से Q तक चले गए और Q से आराम से Y तक चले गए. O से हमें Q तक जाना है, हर जगह इक्वल टू साइन होना चाहिए तो O से हमें इक्वल टू साइन चाहिए, यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, ये गलत हो जाएगा. हेयर दिस इज इक्वल टू साइन इज नॉट अवेलेबल, सो दिस कंक्लूजन नंबर 2 इज रॉन्ग. और यहाँ होगा W से N तक जाना है. वी हैव टू मूव फ्रॉम W टू N, W to F, F to P, P to N. We can't move and we have a closed gate here. W to O, we can move to from W to P, W से P तक हम लोग जा सकते हैं तो P से O तक भी जा सकते हैं. ये करेक्ट. इसको तुम होमवर्क नीचे कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देना. चलो आते हैं पजल के ऊपर. पजल क्या कह रहा है? देयर आर 14 persons H I J K L M N O P Q R S T U V are sitting in a two parallel rows containing 7 person each in such a way that there is equal distance between the adjacent person in row number 1 and H 2 M N and are seated and all of them are facing south. In row number 2 O P Q R S T are seated and all of them are facing north. So इस पजल में हमने नॉर्थ में कौन बैठा है वो भी दे दिया है, साउथ में कौन बैठा है वो भी दे दिया है. In this puzzle we are getting the information of the persons that are facing in that are sitting in row number 1, that is south, that is row number 1, that is south, and in row number 2 that is facing north. We are getting the information about the person that we are sitting here. So how we can approach this puzzle? We can approach this puzzle like this way, that we have to make this and this. Whenever it is mentioned that is a row 1 and row 2, so upper one is row 1 and lower one is row 2. जब भी मेंशन हो रो 1 और रो 2 तो ऊपर वाला रो 1 होता है, नीचे वाला रो 2 होता है. ओके, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि H I J K L M N रो 1 में है और सिमिलरली O P Q R S T U जो है रो 2 में है. ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा. ठीक है, R is denoting right, L is denoting left. Okay, therefore in the given seating arrangement each of them are sitting in the row faces one another. Okay, both person are facing one another. Okay, so this is the arrangement is like this: 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7. So the arrangement is like this only. Okay, the one who faces J sits third to the right of O. The one who faces J. So this is very important to note down the hint here. It is written the one who faces J sits third to the right of the one who faces J sits third to the right of O. So we have to write hint also and solve also. Okay, we need a space to write some hint. So let's write from here. Let's start from writing from here. I have to clear this. क्लियर कर देते हैं और चलते हैं इसको बनाने के लिए. ओके, सो देखो क्या बोल रहा है कि द वन हु फेसेस जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ. हाउ वी विल राइट दिस हिंट? आप इस हिंट को किस तरीके से लिखेंगे? ओके, ओके, third to the right, 3 R's is denoting third to the right. This person is sitting opposite J. Okay, the one who faces J sit third to the right of
neither of the immediate neighbor of 1 faces q, of I हो गया, okay, of I. Neither of the immediate neighbor of I faces q. I immediate neighbors are not facing q. Okay, I immediate neighbor is not facing q. U does not face j. So U is not facing j. Okay, j sits third to the right left of m. So m third to the left is j. Okay, so j. J sits third to the left of m. Q does not faces m. So Q is not facing m. Q is not facing m. Okay. N sits third to the left of L but not to the immediate left. Okay. M is sitting third to the left of L but it is not immediately left is not. Okay. We can note this hint like this. Okay. R does not face N or J. R is not facing N and J. T and U are immediate neighbors. T and U are immediate neighbors. Okay. L does not sit at the end of 0. So L is not at the end. K does not face R. K is not facing R. One of the immediate neighbor of M faces S. One of the immediate neighbor of M faces S. S who does not sit at the end of 0. S is not at the S जो है end पे नहीं है. K is not the immediate neighbor of J. K is not an immediate neighbor of J. H sits third to the right of I. H is sitting I के third to the right पर. Either I or H sit at the end of the row. Okay, either end पे रहेगा. Either या तो H या तो I end पे रहेगा. Okay. P sits third to the right of Q. P is sitting third to the right of Q. Okay. Neither P nor Q faces H. H. Okay. So अब हम लोग कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं. I के थर्ड टू द राइट पे ये लेट्स चेंज द कलर ऑफ इट ब्लैक. सो दिस हिंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हिंट इंपॉर्टेंट है कि I के थर्ड टू द राइट पर J है. तो हम ऐसा कर सकते हैं इन दोनों में से कोई एक ही एंड पे रहेगा. Okay, only one of them, H and I, can be at end. So we can take two possibilities here. Let's put H at the end first. Let's put H at the end, and it's third to the right of I. So I is here, and there is 4 person. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the arrangement. 3, 4, 5, 6, 7. This is the arrangement. And next case, let's put I at the end. I is at the end. 1, 2, 3, H. Look, I is in the first row. First row is facing south. So this side is right and this side is left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So this hint हो गया put. Okay. Now what we can put? Okay. We have put here OPQ. O third Q के third to the right पे P है. Okay, P and Q is not facing H. P and Q are not facing H. Okay. We have to put O third to the right J. O is in second. So if we put O here, first, second, third to the right is opposite J. यहाँ प्लेस नहीं हो पाएगा. O अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू द राइट अपोजिट J मेरा यहाँ प्लेस होगा. ठीक है, J मेरा यहाँ प्लेस हो जाएगा. This is the case. If we place O here, 1, 2, 3, third to the right, J is here, J is here. So there is a possibility in this case. So let's look for another hint. We can put
L third to the left N. Okay. We are getting possibilities in this, है ना? Okay. We can put here that Q is third to the right of P is third to the right of Q, and neither P nor Q is facing H. So neither P can come here or Q can come H. Q can come here. P and Q H को फेस नहीं कर रहा, तो ये दोनों तो यहाँ नहीं आएगा, ये दोनों भी यहाँ नहीं आएगा, P and Q. So we can put something like this, and Q is in row number 2. So it's in row number 2. So we can put Q here, first, second, third to the right. P is here. If P is come here, Q is here, 1, 2, 3, third to the right, P is here. We are getting possibilities. Q is here, 1, 2, 3. Okay, let's make some possibilities. Don't waste time. Let's not waste time and let's make some possibilities. If we put Q is here, then 1, 2, 3, third to the right, P is going to be here. I immediate neighbor can't be Q. I immediate neighbor can't be Q. So in this possibilities, we can't place Q here, we can't place Q here, because I immediate neighbor can't face Q. I के immediate neighbor जो है वो Q को फेस नहीं कर सकता, तो यहाँ हमारा Q की पॉसिबिलिटी खत्म हुई. यहाँ पे इस वाले में भी Q यहाँ प्लेस हम लोग नहीं कर सकते हैं. सो Q के और यहाँ पे हम लोग P and Q तो ऐसे ही नहीं प्लेस कर सकते हैं, तो P and Q यहाँ नहीं आ सकता है. ओके, सो वी आर गेटिंग थिंग्स लाइक दिस. तो अब है इस तरीके से मिल रहा है चीजें कि अगर हम Q को यहाँ प्लेस करते हैं तो 1, 2, 3 थर्ड टू राइट पे P मेरा यहाँ प्लेस हो जाए. एक केस हमारा और बनेगा यहाँ पर कि अगर हम Q को यहाँ प्लेस करें तो 1, 2, 3 थर्ड टू द राइट पे P यहाँ आ जाएगा, है ना. एक पॉसिबिलिटी और बन रही है, तो उसे बना लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I is here, 1, 2. H is here, and we're getting Q is here, 1, 2, 3, P is here, right? In this possibility, we are getting, we can place Q here, 1, 2, 3, P is here, we can't place P, we can't place, okay, this is the only possibility here. So case 1, case 2, case 3. ठीक है, आगे हम लोग कहीं भी Q को पुट करेंगे तो थर्ड टू द राइट पे तो नहीं प्लेस कर पाएंगे P को. So this is done, this is done, this is done, and this is also done. So let's look at this end. O third to the right person is facing J. O third to the right person. If we place O here, 1, second, third to the right person is facing J. And J is third to the left of M. And J is also third to the left of M. Since this is facing south, this is right and this is left. So this can be a possibility. This is the only possibility, because if we place J here, then we can't place M here. अगर हम लोग J यहाँ को प्लेस करते हैं तो M के थर्ड टू द लेफ्ट पे J यहाँ नहीं जाएगा. तो यही एक पॉसिबिलिटी हमारी बच रही है कि J को हम लोग, लेट्स वेट, ओके, देखो एक यही पॉसिबिलिटी बन रही है कि J को हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे और थर्ड टू द लेफ्ट है M के, M यहाँ आएगा, M यहाँ आएगा, और Q जो था ये O के थर्ड टू द राइट पे पर्सन, तो O यहाँ आएगा, 1, 2, 3 थर्ड टू द राइट. सो इस दोनों हिंट को, if we merge this hint and this hint, we are getting that O is here and the person is third to the right of O is here, and this is the case that if we merge these two hint, we will get a case like this, that M is facing O and from O third to the right person is facing J. Okay, right? Let's look at this possibility. In this possibility, this is the only case also that we place M here, this is O here, and first, second, third to the right, J is here. Okay, this is the, in this case, if we place J here, then we can't place O here. If we place M here, then O here, then first, second, third to the right, J is here. This is the only possibility. Okay, this is done, this is done. Okay, now we know that T and U are immediate neighbors and it is in row number 2. T and U जो है immediate neighbor में है और row number 2 में है, तो T and U can come here. In this case, T and U can come here. In this case, T and U can come here. T and U can come here. In this case, 2 and U can come here. T and U can come here.
So okay, we know that L is not at the end. If L is not at the end, L can be here and L can be here. In this case, L can be here, L can be here. Okay, L third to the left is N. We know that L third to the left is N. So we can't place L here because we will not get anyone third to the left of N. L को हम लोग यहाँ place नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई भी third to the left में नहीं, हाँ मिल जाएगा ना। L को हम लोग यहाँ प्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि थर्ड टू द लेफ्ट पे इधर हमारा लेफ्ट पे तो कोई नहीं है। वी कांट प्लेस L here because we will not get anyone to third to the left of L. So we will place L here. We will place L here, L here, and then third to the left is N. Third to the left is N, and in this case, we will place L here. First, second, third to the left is L, third to the left is N. L is here. Okay, in this case, we will put L here. First, second, third to the left is N. Okay, only one person is remaining in the first row. Only one H I J K L M. H I J K. K is here. K is here, and K is here. We know that K is not an immediate neighbor of J, so this possibility is eliminated. K is not an immediate neighbor of J. K is not an immediate neighbor of J. So we are left with only this. Okay, one of the immediate neighbor of M faces S. One of the immediate neighbor of M faces S. So this will be S, and in this case, this will be S. Okay, we are left with only one person now. So O P Q R S T, O P Q R R R R. Okay, K is not facing R. K is facing R. So this possibility is eliminated. Okay, T and U. Now we have to decide between T and U. U is not facing J. U is not facing J. So we can write here U is not facing J. So we can correct it. That U will be here and T will be here. So this is the correct placement. Okay. Okay, the remaining hint you can also check. Look, we don't use this hint, we didn't use this hint, but it's also always it's satisfying. R is not facing N and J. R जो है N and J को फेस नहीं कर रहा है, Q जो है M को फेस नहीं कर रहा है। तो ये वाली हिंट हमारे ने यूज नहीं की और ये हमारा बन गया सवाल। आई होप यू लाइक द सेशन। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। In a first of its kind apprenticeship program by the government of India for non-technical graduates, up to 5 lakh students from across university and college will join various industries and services sector from July 2019। ठीक है, देखो इसमें है ना, जब भी आपको आता है ये सवाल, तब तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी रखनी होगी। फ्री के नंबर रहते हैं, कई बार फ्री का नंबर रहता है, लेकिन लोग डरते हैं इससे, लॉजिकल रीजन से तो नहीं बनाते। देयर आर समटाइम्स देयर आर very easy questions from logical reasoning, but people get afraid of this section and leave them. So we don't have to be afraid of this section. We will solve this question. हमें डरना नहीं है सेक्शन से। एक बार पढ़ते हैं ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप खुद ट्राई कीजिए, एक बार पढ़ते हैं हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये तो ऑप्शन है ना, 1 2 A B C D and E, दीज आर ऑप्शंस। ये तो ऑप्शंस है और इनसे रिलेटेड 3 सवाल है हमारे। देखो इसका जैसे B एंड C आंसर हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बताएंगे आपको। इसमें 3 सवाल है, 1 2 3 3 सवाल है। इसका B एंड C ही क्यों आंसर, हाँ हम लोग ये देखते हैं, ये हमें सीखने आए हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसका B एंड C क्या होगा। इसमें हमें क्वेश्चन पूछा कि which of the following among will be the valid effect of the above decision taken by the government। गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, हमसे ये पूछा है। तो हम अगर एक बार इसे पढ़ लेंगे तो हम लोग 3 सवाल को सॉल्व करेंगे। इफ वी विल रीड दिस क्वेश्चन ओनली वंस वी विल एबल टू सॉल्व 3 क्वेश्चन। सो लेट्स रीड इट। व्हाई द आंसर इज ओनली ऑप्शन नंबर डी। In a first of its kind apprenticeship program by the government of India for non-technical graduates, पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ओके, सबसे पहला प्रोग्राम जो है आपका इस तरह का सबसे पहला प्रोग्राम है जिसमें फॉर नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स
apprenticeship program with the government for non-technical. Up to 5 lakh students from across universities and college will join various industries and service sector from जुलाई 2019. अप्रोक्सीमेटली 5 लाख स्टूडेंट जो है ना बहुत वेरियस यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से जो कि ज्वाइन करेंगे वेरियस इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर को जुलाई 2019 से. अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन मिनिस्ट्री, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के हिसाब से ये हमें तो एक डाटा ही ना दिया कि यहाँ से जो है आपको 5 लाख स्टूडेंट्स जो है अक्रॉस यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जो कि ज्वाइन करने वाले हैं वेरियस इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर को 2019 से. ठीक है, हम लोग पढ़ लिया, वी हैव रेड दिस. अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ह्यूमन एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा ये बताया गया है कि ओवर 9.2 लाख स्टूडेंट फ्रॉम 1533 नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज हैव अप्लाइड फॉर द मिनिमम 6 मंथ एंटरप्रेन्योरशिप. ये हमें एक और डाटा दिया कि ये जो है ना 9.25 लाख स्टूडेंट जो है करीब 1533 नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया है मिनिमम 6 मंथ की स्कॉलरशिप के लिए. कॉल्ड स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल, श्रेयस प्रोग्राम के लिए. ये तो हमें बताया कि देखो मिनिस्ट्री ना ये एक डाटा दी है, तो कहां से ये क्वेश्चन टफ रहा? अभी तक तो कोई हमें टफ क्वेश्चन नहीं रहा. ये कहा कि एक वन ऑफ अ काइंड प्रोग्राम लॉन्च की है गवर्नमेंट, उसके बाद एक डाटा दे दिया कि ये देखो ये हमें इतना लोगों ने अप्लाई किया, गवर्नमेंट लॉन्च की है कुछ स्कीम, तो उसमें लोग अप्लाई करेंगे, तो ये डाटा दिया दैट द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दिस स्कीम एंड दिस मच पर्सन हैव अप्लाइड फॉर इट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. स्टूडेंट्स विल गेट अ मंथली स्टिपेंड ऑफ 6000 पर मंथ. अब स्किल के बारे में बता रहा है कि आपको 6000 रुपए पर मंथ स्टिपेंड मिलेगा स्टूडेंट को. अपार्ट फ्रॉम द एश्योर्ड 6000 पर मंथ स्टिपेंड, अपार्ट फ्रॉम ये जो एश्योर्ड 6000 रुपए तो आपको मिल ही रहा है, द स्टूडेंट विल आल्सो गेट 1500 रीइंबर्समेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेकिंग इट द बिगेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम. 1500 रुपया आपको रीइंबर्समेंट भी मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया. इस टाइप के क्वेश्चन में ना अब हम ऑप्शन को अभी नहीं पढ़ेंगे. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन नाउ वी विल लीव द क्वेश्चन, we will read the question but we will not read the option now. We will go to the question. What is the question asking? Because every question will be asking different thing, and while reading the options we will keep in mind what the question is asking. ठीक है, हर क्वेश्चन अलग चीज पूछेगा और जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि उस टाइम हम क्या पहुंच रहे हैं. जैसे इस क्वेश्चन में हमने पूछा है which of the following ABCDE will be the valid effect of the above decision. अगला इस ABCDE में से वैलिड इफेक्ट क्या होगा, ये जो गवर्नमेंट ने लिया है इफेक्ट क्या होगा, क्या हो सकता है. अब देखो ए क्यों नहीं होगा. इंडिया में डेवलप द पूल ऑफ स्किल मैन पावर इन द कमिंग 2 to 3 years. देखो 6 मंथ का स्किल प्रोग्राम है, अब 2 साल में इंडिया एक पूल ऑफ स्किल लेबर बना लेगी, इसको हम लोग इफेक्ट नहीं कह सकते. हो सकता है कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो रहा उसमें उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हो सकता है 2 से 3 साल है, या फिर कुछ और में लोग यहाँ से स्किल करके दूसरा फील्ड भी चुन सकते हैं. सो वी कांट से डेफिनेटली दैट विल दिस विल बी द इफेक्ट दैट इंडिया विल बी अ स्किल ऑफ मैन पावर ओके इन 2 to 3 years बिकॉज द ड्यूरेशन इज सो लॉन्ग. ड्यूरेशन काफी बड़ा है तो हम लोग कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चीज तो कह सकते हैं क्योंकि कुछ भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो उसका ये इफेक्ट क्या होता है दैट स्टूडेंट में फाइंड इट इजियर टू गेट अ सुटेबल जॉब. अगर आप कहीं जॉब अप्लाई करते हैं और आप देते हैं कि इसमें इसके रिगार्डिंग हम ट्रेनिंग भी किए हैं तो आपको जॉब मिलने में प्रीफरेंस दिया जाता है. प्रीफरेंस दिया जाता है, जैसे नोटिफिकेशन ही आता है तो एमबीए ग्रेजुएट्स विल बी प्रीफर्ड लिखा रहता है, तो वही सी बात है अगर आप एमबीए ग्रेजुएट होंगे तो आपको प्रीफरेंस मिलेगी. सो ये बात तो इसमें इफेक्ट में सही आ रही है. अब देखो अनएम्प्लॉयड यूथ इन द कंट्री में डिक्रीज विद द अबव स्कीम रन बाय द गवर्नमेंट. अब आप स्किल ले रहे हैं तो ये एक तो इफेक्ट यही ना होगा कि जो आप स्किल लेकर के जॉब लीजिएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ से कम होगी. ठीक है, अब यहाँ पे डी क्यों नहीं है. स्किल training program are already running in the country but youths of the country are not getting the real benefit of the program. अब ये वैलिड इफेक्ट इस स्कीम का ये इफेक्ट तो नहीं ना होगा कि जो है स्किल लर्निंग प्रोग्राम जो कंट्री में रन कर रही है गवर्नमेंट लेकिन यूथ जो है रियल बेनिफिट नहीं ले रहे हैं. ये प्रीवियस स्कीम की बात करिए, इस स्कीम का तो ये इफेक्ट नहीं बात करिए. तो यहाँ हमने डी एलिमिनेट किया. गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एवरी ईयर ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये तो एक इंफॉर्मेशन दिया हमें कि दैट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सो एंड सो मनी इन द डेवलपमेंट स्किल प्रोग्राम. सो गवर्नमेंट जो है जो हमारा इतना स्किल प्रोग्राम में स्पेंड कर रही है मनी. सो दिस एलिमिनेट हो गया. सो हमारा इस वजह से इसका सही जवाब ओनली बी एंड सी रहा. आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन एंड यू विल लाइक द सेशन आल्सो. हिट द लाइक बटन. लाइक बटन जो है हमें उसे आप हिट कर दीजिए. ओके, बड़ा गंदा लाइक बटन बन गया. ओके, चलो देखो इसमें क्या बोल रहा है. Which of the following among A, B, C, D, E has been assumed in the given information? An assumption is something that is assumed or supposed to be taken granted. इसमें से है ना एक assumption जो है वो आपको बताया कि assume क्या कर लिया गया है इसमें. ठीक है, assume क्या किया गया है इसमें.
कि ये क्या इसमें एज्यूम किया गया। देखो ये तो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि गवर्नमेंट पैसा आपको कर रही है, ये हमें दिया है कि बहुत सारा ये कर रहा है। एज्यूम क्या किया गया है? एज्यूम हमारा, इसमें देखो आंसर की तरफ चलते हैं। एज्यूम हमारा ए किया गया है कि हो सकता है कि मे डेवलप अ पूल ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन द कमिंग 3 years। इंडिया जो है हो सकता है ऐसा कि ये डेवलप कर दे, मे डेवलप अ पूल ऑफ स्किल्ड मैन पावर्स। ओके, ये हमारा, अच्छा यहाँ पे मे वर्ड भी था, ये मे हम लोग एज्यूमिनेशन में लगाते ही हैं। अब यहाँ पे सी हम लोग क्यों नहीं करेंगे? सी और ए में तो कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को कि अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री मे डिक्रीज इन द अबव स्कीम रन बाय द गवर्नमेंट। ओके, इसमें अज्यूम क्या किया गया? ये इफेक्ट है, एक इफेक्ट है। ये इफेक्ट होगा ही स्कीम का कि ये जो स्कीम है उसमें स्किल्ड लेबर्स होंगे, स्किल्ड लेबर्स जो होंगे डेवलप करेंगे तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा ही, ये एज्यूम किया गया है। लेकिन ये चीज है कि इंडिया जो है एक पूल बन जाएगा स्किल्ड लेबर्स का, स्किल मैन पावर फोर्स का। इसमें जो बोला ना कि मान लो कि 100 स्टूडेंट में से 100 स्टूडेंट ने ट्रेनिंग ली, 100 स्टूडेंट ने ट्रेनिंग ली, उसमें 25 को जॉब लगी, 25 जॉब लगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हुआ ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ। तो ये तो एक इफेक्ट तो हो रहा है। इफ, लेकिन एक पूल ऑफ स्किल मैन पावर होगा, ये तो हम एज्यूम ही ना कर रहे हैं, ये एक पूल ऑफ मैन पावर बन जाएगा। मतलब 100 जो लिए हैं, जो 100 हम लोग स्किल मैन पावर बना रहे हैं, तो अपकमिंग 2 to 3 years में ये स्किल्ड मैन पावर बन जाएगा। क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये स्कीम हम 2 to 3 years रन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। हमें तो ये एज्यूम ही कर रहे हैं, हो सकता है कि 6 मंथ में इस स्कीम की इतनी खराब ये रहे फीडबैक दैट वी हैव टू क्लोज इट। ये हो सकता है दैट दिस स्कीम इज गेटिंग सो बैड फीडबैक दैट वी हैव टू क्लोज इन 2 to 6 month। ओके, so we are assuming that India will be a pool of skilled manpower in upcoming 2 to 3 years. This duration is making this statement so powerful here. Okay, so I know that uh, this topic is confusing for some students, but you have to try, because today in competition you have to solve these logical reasoning questions, and I'm trying my best to teach you also, and you will eventually learn how to solve this question। आपको ये क्वेश्चन टफ लगेंगे लेकिन धीरे धीरे सॉल्व करते आ जाएगा। तो यहाँ पे आई होप कि ए और सी का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग निगेट्स द डिसीजन टेकन बाय द डिसीजन। तो इसमें जो है ना, ये जो डिसीजन लिया गया है इसे वीकेंड कौन कर देता है, एक तरीके से, इस तरीके से समझ लो। निगेट्स का मतलब अगर नहीं समझ रहे हो, इसमें से वीक कौन करा है, ये तो बहुत आसान हो गया। ए तो हमारा बोल रहा है पूल स्किन कर देगा, दूसरा बोल रहा है कि स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, तीसरा बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन चौथा क्या बोल रहा है, डी देखो तो डी क्या बोल रहा है, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हमेशा से अभी अभी हमारा रन कर ही रहा है, बट यूथ ऑफ द कंट्री आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट। ये हमारा बोला कि आप तो स्किल प्रोग्राम रन कर ही रहे हैं लेकिन यूथ जो है हमारे बेनिफिट उससे नहीं हो रहे हैं, है ना। The fourth statement is saying that we are running skill program but youth is not getting the benefits. So in a way it is negating that if that the youth is not getting benefit, and you are also and you are launching scheme after schemes, youth हमारा इस benefit नहीं हो रहा है, but आप स्कीम के बाद एक स्कीम आप लॉन्च करते जा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही जवाब होगा। ओके, सो अब देखो देखो अब इसमें से चलो 1 से 3 में, अगर 3 वाला तो 1 2 और 3, इसमें 3 तो आप आराम से बना सकते थे अगर आप पढ़ते ही नहीं, तो 3 तो आपको एकदम इजी मार्क्स था। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एकदम इजी मार्क्स था। तो एक क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर ही सकते थे इसमें से, ठीक है। लास्ट में आप अटेम्प्ट कीजिए, पजल बनाने के बाद बचेगा, तो ऐसा थोड़ी कि बैठ जाइए, तो आप इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, एंड यू इफ यू आर न्यू यू विल वॉच द लेसन्स, प्रीवियस लेसन्स ऑफ दिस बैच, and join our telegram channel also and subscribe the channel. If you are new, subscribe the channel, do like the video, share with your friends. We will meet in the next lessons. All the best for upcoming examinations.